गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा डेटा क्या होता है, कितने टाइप का होता है। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। टेस्ट, एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वे studies in education and psychology provide us valuable data, mostly in the shape of numerical scores. These data in their original form have little meaning for the investigator or reader. For understanding the meaning and useful conclusions, the data have to be organized or arranged in some systematic way. The organization and arrangement of original data or computed statistics in a proper way for deriving useful interpretation is termed as organization of data. Now, what is meaning of graphical representation of data? A graphic representation is the geometrical image of a set of data. It is mathematical picture. It enables us to think about a statistical problem in visual terms. A picture is said to be more effective than words for describing a particular thing or phenomenon. Consequently, the graphic representation of data proves quite an effective and an economic device for the presentation, understanding and interpretation of the collected statistical data. There are many advantages of graphical representation of data, just like the data can be presented in a more attractive and an appealing form. It provides a more lasting effect on the brain. It is possible to have immediate and a meaningful grasp of large amount of data through such presentations. Comparative analysis and interpretation may be effectively and easily made. Various valuable statistics like median, mode, quartiles may be easily computed. Through such representations, we also get an indicator of correlation between two variables. Such representations may help in the proper estimation, evaluation and interpretation of the characteristics of items and individuals. The real value of graphical representation lies in its economy and effectiveness. It carries a lot of communication power. Graphical representations helps in forecasting as it indicates the trend of the data in the past. There are different modes of graphical representation of data. We know that the data in the form of raw scores is known as ungrouped data, and when it is organized into a frequency distribution, then it is referred to as grouped data. Separate methods are used to represent these two types of data, ungrouped and grouped data. First, we will discuss about the graphical representation of ungrouped data. For ungrouped data, the data can be presented with the help of bar graphs and circle graphs. We will do it with the help of the example. First, bar graph. बार ग्राफ के अंदर सिर्फ सिंपल ग्राफ्स होते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई एक स्कूल दिया हुआ है और उसके 4 साल की पॉपुलेशन हमारे पास है। सपोज दैट 2005 के अंदर इस स्कूल की पॉपुलेशन थी 1450। दिस इज द ईयर एंड दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड इन 2006 द पॉपुलेशन इज 1200। In 2007, suppose that the population is 1500, and in 2008, suppose that the population is 1600. Now we have to present this data with the help of the bar graphs. इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस, और ये जिस पॉइंट पर ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, that point is called the point of intersection. This is called y axis and this is x axis. हमें अपनी 4 साल की पॉपुलेशन को बार की हेल्प से ड्रॉ करना है, तो हम हर पॉपुलेशन के लिए अलग से एक बार ड्रॉ करेंगे। हमारे पास पहले साल जो पॉपुलेशन है दैट इज 1450 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ईयर है यहाँ पर 2005। अब इसके अंदर जब हम किसी बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक विड्थ हमें अपने पास से डिसाइड करनी होती है। इसके लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। कोई भी विड्थ जो हम अपने इजीली जिसको ड्रॉ कर सकते हैं
वो विड्थ ले सकते हैं, लेकिन हर ग्राफ के लिए, हर बार ग्राफ के लिए हमें उस विड्थ को सेम रखना पड़ेगा और हर ग्राफ के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो भी सेम होना चाहिए और उनकी हाइट भी प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर वैसे हम वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, क्योंकि ये अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। तो 2005 के अंदर 1450 बच्चे हैं इस स्कूल के अंदर, तो हमने मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर की विड्थ को लिया और 1450 बच्चे हैं तो हम अंदाजन 14.5 सेंटीमीटर की हाइट तक इसको लेके जाएंगे। तो ये 14.50 की हाइट तक हम इस बार ग्राफ को लेके जाएंगे। अब सेकंड जो हमारा बार ग्राफ है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1200। तो जैसे हमने इसकी हाइट को लिया 14.5 सेंटीमीटर, तो इस हाइट को हम लेंगे 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। अगर प्रोपोर्शनेट नहीं होगी तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता लग पाएगा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं वो किस रेशो के अंदर हुए हैं। तो सेकेंड ईयर में हमारी अगर पॉपुलेशन 1200 है तो 12 सेंटीमीटर हम इसके लिए हाइट लेंगे और ये जो विड्थ हमने ली है 2005 के लिए वही विड्थ 2 सेंटीमीटर की हम यहाँ पर लेंगे। दिस इज 2006, विड्थ वही रहेगी और इसकी हाइट क्योंकि 12 सेंटीमीटर है तो आप इसको स्केल से मेजर करेंगे और 12 सेंटीमीटर तक इस हाइट को लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा ईयर है 2007 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1500। तो इसमें हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि पहले बार ग्राफ और दूसरे बार ग्राफ के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारा तीसरे बार ग्राफ के बीच में और दूसरे बार ग्राफ के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर उसी डिस्टेंस पर हम, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 1500, सो वी कैन टेक 15 सेंटीमीटर एज द हाइट ऑफ दिस बार ग्राफ और विड्थ वही लेनी है जो हम पहले ले चुके हैं, दैट इज 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी 1450 के लिए लिया हमने 14.5 सेंटीमीटर, 1200 के लिए लिया 12 सेंटीमीटर, तो 1500 के लिए लेंगे हम 15 सेंटीमीटर। एंड इन द नेक्स्ट ईयर इन 2008 द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 1600। तो जो डिस्टेंस हमारा पहले बार ग्राफ और दूसरे में था वही दूसरे और तीसरे में था और वही हम डिस्टेंस तीसरे और चौथे के अंदर लेंगे, क्योंकि इसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर। सिंपल सा एक बार हमने बना दिया। ये हमारा था 2006 के लिए, ये 2007 के लिए और ये होगा 2008 के लिए। तो बार ग्राफ की हेल्प से हम इस तरीके से किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सर्कल ग्राफ। अब देखिए, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है सर्कल ग्राफ क्या होता है, जिसे हम सर्कल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको पाई ग्राफ भी कहा जाता है। इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से करके देखेंगे। हम ये अज्यूम करते हैं कि कोई भी एक क्लास है, या 10th क्लास है या 9th क्लास है और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 120 हैं और उन सभी 120 स्टूडेंट्स को एक हॉबी ऑप्ट करने के लिए कहा गया और उन बच्चों ने जो अपनी हॉबी ली वो इस तरीके से ली। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 120। इन 120 में से जिन्होंने अपनी ऑप्शन ली है, फर्स्ट फोटोग्राफी को लिया 6 स्टूडेंट्स ने। सेकंड आता है इसका क्ले मॉडलिंग को लिया 30 स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ 120। क्ले मॉडलिंग के बाद मान लीजिए कि हमारे पास आ गया किचन गार्डनिंग को लिया 48 स्टूडेंट्स ने। इसके बाद हमारे पास आता है मान लीजिए डॉल मेकिंग की एक ऑप्शन है, डॉल मेकिंग को ले लिया 12 स्टूडेंट्स ने। और उसके बाद आता है बुक बाइंडिंग को लिया 24 स्टूडेंट्स ने। अब हमें इन सभी चॉइसेस को एक सर्कल ग्राफ की हेल्प से प्रेजेंट करना है। अब हमें ये पता है कि एक सर्कल टोटल 360 डिग्री का एंगल कवर करता है। एक तरीके से हमने इन सभी चॉइसेस को 360 डिग्री के अंदर डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, तो अब किस चॉइस को कितना एरिया मिलेगा इस सर्कल के अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जो टोटल एंगल एक सर्कल के अंदर बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। अब हमारे पास हमें ये पता है कि 120 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फोटोग्राफी को लिया। 120 में से 6 स्टूडेंट्स ने लिया, तो हमारे पास 360 में से
कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फोटोग्राफी के लिए जाएंगे? इट मीन्स इट इज इक्वल टू 18 डिग्री, क्योंकि हमें सर्कल में से इस चॉइस को 18 डिग्री का एंगल जितना भी एरिया कवर करेगा वो किसके लिए जाएगा? वो जाएगा फोटोग्राफी के लिए। इसी तरीके से क्ले मॉडलिंग में 30 स्टूडेंट्स हैं, 120 में से 30 ने लिया, तो 30 बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 360, तो 90 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे 360 में से जिन्होंने क्ले मॉडलिंग को लिया, या हम ये कह सकते हैं कि 360 में से 90 डिग्री का एंगल जितना एरिया कवर करेगा वो किसको मिलेगा? क्ले मॉडलिंग को। किचन गार्डनिंग में 48 स्टूडेंट्स थे, 48 बाय 120 इंटू 360, ये हो गया 144 डिग्री। तो किचन गार्डनिंग को मिला 144 डिग्री। सिमिलरली डोर मेकिंग के लिए हम निकाल सकते हैं और इसी तरीके से हम बुक बाइंडिंग के लिए भी निकाल सकते हैं। तो हमारा डोर मेकिंग को जाएगा 36 और बुक बाइंडिंग के लिए जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 360, ये जाएगा 72 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? सर्कल का एक जो सेंटर होता है वहां से हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया। इस डायमीटर से हम इस सर्कल को डिवाइड करना शुरू करेंगे। किस किस में? 18 डिग्री में, 90 में, 144, 36 एंड 72 डिग्री के अंदर। तो सबसे पहले हम 18 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सपोज करो कि वो इतना एरिया कवर करता है, तो ये एरिया किसके लिए होगा? फोटोग्राफी के लिए। 18 डिग्री का एंगल और ये जाता है फोटोग्राफी। नेक्स्ट क्ले मॉडलिंग है, उसके लिए जाता है 90 डिग्री। हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये हो गया 90 डिग्री और ये गया क्ले मॉडलिंग। फोर्थ नंबर पर आता है किचन गार्डनिंग, इसको जाता है 144 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगा। आप लोग जब ड्रॉ करेंगे तो कंपास की हेल्प से आप ड्रॉ करेंगे 144 डिग्री और ये जाता है किचन गार्डनिंग को। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है डॉल मेकिंग। डॉल मेकिंग को मिलता है 36 डिग्री, तो ये 36 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पर, ये जाता है डॉल मेकिंग को। और जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली 72 डिग्री बनेगा, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होते हैं, तो 72 डिग्री जाता है बुक बाइंडिंग को। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस थी, ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस थी जो हमारे अनग्रुप डाटा होता है उसके लिए थी। इसके अंदर लाइन ग्राफ भी आता है, तो वो भी जैसे बार ग्राफ ड्रॉ किए थे उसी तरीके से होता है। तो आज हमने किया अनग्रुप डाटा के बारे में और कल हम करेंगे ग्रुप डाटा के बारे में। थैंक यू।